Assalamu alaikum, Khawateen wa Hazrat, and thank you so much for staying tuned to PTV Sports. Certainly, you watching the post-match analysis on Game On है. मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का मैच आप सबने enjoy किया होगा. But before I speak any further, ladies and gentlemen, I would like to introduce my wonderful guests over here inside the PTV Sports Studios Islamabad. सबसे पहले तारुफ कराना चाहता हूं former Test cricketer himself. He's Mr. Basil Khan. Assalamu alaikum, Basil bhai. How are you? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here alongside Mr. Basil Khan. Ladies and gentlemen, we're lucky that we've been joined by former skipper of Pakistan cricket team. He is Mr. Mohammad Hafiz. Hello, assalamu alaikum, Hafiz bhai. How are you? Walaikum assalam. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. And ladies and gentlemen, last but not the least, साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम विकेट कीपर बैठा है, ये है मिस्टर राशिद लतीफ. अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम. राशिद भाई, गुड गेम टुडे बाय अफगानिस्तान. यार बहुत अच्छा खेले. 3 चैंपियन, जैसे आपने इंट्रो में बताया कि वर्ल्ड चैंपियन को हराना और 6 पॉइंट्स लेना और कुछ मैचेस बाकी रहना, ये बहुत कुछ हमें भी सिखा रहा है और इनके अपनी क्रिकेट के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई है. और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं सारे प्लेयर्स अफ़गानिस्तान के, और स्पेशली मीर वाहिद अशरफ. हमेशा बोलता हूँ कि वो एक शख्स है जिसने एक नहीं बहुत सारे होंगे, लेकिन जिनको मैं जानता हूँ एज ए प्रेसिडेंट बहुत काम किया उन्होंने अफ़गानिस्तान के लिए. स्टिल हमारी बेस्ट विचेस PTV स्पोर्ट की जानिब से उनको और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो. एग्जैक्टली. इससे पहले हम आपको भी एक ओवरव्यू जरूर देना चाहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स टेक अ गुड लुक एट द मैच समरी एज टू व्हाट हैपेंड टुडे वेयर अफगानिस्तान वन द टॉस and they elected to field first, ladies and gentlemen, with Sri Lanka. I mean, it looked like as if they were in trouble right after Sanka left, and there was Kasal Mendes with another 39. Sadira Samarik Verma, where they totally relied on him, couldn't really put in that effort. It was the bowling, which certainly did restrict them as well. But moving on to Afghanistan, where their ability to chase such a score was something which I believe that everybody might have doubted, but they certainly weren't in any doubts, because what they did against Pakistan is something which they did against Sri Lanka as well. It was Azmat, Rahmat, Hashmat and Ibrahim making sure that they're going to play the conventional cricket, the smart way, making sure that they're going to apply themselves. And then, if we are to come towards bowling, Fazal Haq Farooqi, wow, magician today, 4 of 34. Then there was Mujib, who really turned the game around for Afghanistan, 2 for 38, and then there was Azmatullah Umarzai, who won for 37. On the contrary, it was unfortunate to see that Sri Lanka bowling once again did struggle, couldn't really get those wickets which they needed. Well, certainly they were below par, if you are to speak about the score. Taking a good look at the points table, जो अभी राशिद भाई ने बात की, मेरा ख्याल है मैं उसी के ऊपर दोबारा से बात करना चाहूँगा कि Afghanistan has made sure that they're going to stay in this game and they are here to play. Imagine that they are at the 5th position in the points table. Look at the points that they have gotten themselves as well, with 3 wins, 6 points, and a net run rate of 0.72, and pushing down Sri Lanka and Pakistan. Unfortunate for Pakistan and Sri Lanka to be in such a position, but congratulations to Team Afghanistan. Moving on to Mr. Mohammad Hafiz. Hafiz bhai, जिस तरह से आज उन्होंने अप्लाई किया, शायद हमने पिछले इंडिया के मैच में रोहित शर्मा की एप्लीकेशन और कैरेक्टर के ऊपर बात की थी, दैट दिस इज हाउ यू शुड हैव प्लेड. आज अभी जब हमने पोस्ट मैच सेरेमनी में भी देखा, हशमतुल्लाह ने कहा कि भाई हमने इस हवाले से वर्ल्ड कप में आने से पहले भी बड़ी तैयारी की थी और हम कोशिश कर रहे थे कि हम जिस आइडियोलॉजी के साथ आ रहे हैं उसी के साथ आगे हम प्रोग्रेस करते रहें, और वो प्रोग्रेशन आज नज़र आया. जी, क्या कहेंगे? ये बहुत ज़्यादा तारीफ़ करनी है अफ़गानिस्तान की पूरी टीम की. देखें, उम्मीदें तो पूरा अफ़गानिस्तान और उनके जो फ़ैन है पूरी दुनिया में, वो उनसे हमेशा लगा के बैठे हुए. लेकिन जिस तरीके से इतनी जल्दी मैच्योरिटी उन्होंने शो किया एक बड़े इवेंट के अंदर, किसी भी तरीके से तीनों जो उन्होंने मैच जीते, तीनों वर्ल्ड चैम्पियंस के ख़िलाफ़, वो किसी भी तरीके से आप उसको किसी रॉन्ग वे में अपसेट या अनफॉर्चुनेट फॉर द अदर टीम्स नहीं कह सकते. इनकी क्लिनिकल एंड कॉम्प्रीहेंसिव विक्ट्री है. इनका कमांड था पहले बॉल से लेके एंड तक, एक राइट प्लानिंग थी. देखें, आज हम बैठे हुए थे और अभी भी मैं समझता हूँ कि नूर को बाहर निकालना एक बहुत बड़ा डिसीजन था, लेकिन उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया. उनकी मैनेजमेंट की तारीफ़ जितनी की जाए कम है. और जो हशमत है, मैं उनकी तारीफ़ इसलिए करना चाहता हूँ कि बड़े मुश्किल हालात में उन्होंने ये कैप्टनसी रोल लिया, क्योंकि इससे पहले कंट्रोवर्सी चली. नबी ने कप्तानी छोड़ी, राशिद को 2 मरतबा कप्तान बनाया, राशिद छोड़ के चले गए. सो देयर वाज समथिंग विच वेयर दे वर नॉट सेटल्ड इन. लेकिन वहाँ पे एक मुश्किल हालात में लीडरशिप लेना और इतनी शानदार परफॉर्मेंस अपनी टीम से लेना, और जो यूनिटी नज़र आ रही है, देखिए जो टीम की यूनिटी ना, उसके बनाने में कप्तान का बड़ा अहम रोल होता है. तो मुझे लगता है कि
बाकी जिनको भी हम जितनी मर्जी तारीफ करें, लेकिन कप्तान को सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता। बिल्कुल क्रेडिट जाना चाहिए। और एक और चीज, जी जी जी, आपने एक बात की कि श्रीलंका और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली, ये लफ्ज न के, इसकी दे आर वजह- वेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस। आज श्रीलंका की बात करेंगे, कल पाकिस्तान की करेंगे। हम जरूर करेंगे। आपने जो रीजंस दिए वो भी ठीक है, बट एज a true supporter of our team, I think I would certainly refer to it as unfortunate है मैं हमारे लिए उससे ये बड़ा देखना supporter हूं। कि हमारे लिए ये देखना कि यार वो डाउन द ऑर्डर आ मैं गए। उससे भी बड़ा सपोर्टर हूं, लेकिन उसको अनफॉर्चुनेट ना कहें। एग्जैक्टली, फॉर मी प्रॉब्ली इट्स अनफॉर्चुनेट, आपके लिए नहीं होगा। मैं इस तरह से पुट कर देता हूँ। मैं बाजी भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। बाजी भाई, द कैरेक्टर दे हैव शोड, बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं लगे। जिस तरह से उन्होंने चेस किया 1 बॉल एट ए टाइम, जिस तरह से उन्होंने बात की उनके प्लेयर्स ने सुबह में भी कि दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू टेक द गेम एज वेल। For them to understand that this is what the game demands is something which I'm overwhelmed with for Team Afghanistan. बिल्कुल, पहले तो ये कह दूं कि ये जो रिजल्ट है पाकिस्तान के लिए फॉर्चुनेट है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान का यही चांस है कि न्यूजीलैंड सारे मैच हारे और पाकिस्तान सारे मैच जीते। उसमें ये ज़रूरी था कि श्रीलंका ये मैच हारे ताकि वो उस रेस में ना आए। खैर वो अलहदा, मतलब जो डिबेट नहीं है, वो हमारी जो कैलकुलेशन वो अलहदा चलती है। बट देखिए, इंग्लैंड को इन्होंने हराया तो शायद हमें लगा कि इंग्लैंड बहुत बुरा खेली है। पाकिस्तान को हराया तो शायद लगा कि इनकी सारी चीज़ें ही वर्क कर गई। आज जब हराया तो ऐसे लगा कि वाकई अफ़गानिस्तान ने, वो कहते हैं ना, दे टर्न द कॉर्नर, के अब वाकई वो उस मतलब डेवलपमेंट के उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां पे उनको मैच जीतना आता है। जो कामनस बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त हुई, उन्होंने किसी भी मौके पे श्रीलंका को गेम में आगे नहीं निकलने दिया, विकेटें ली, प्रेशर रखा, मतलब ज़्यादा स्कोर नहीं होने दिया। जो भी बैटर लगा कि अब सेट है उसको आउट कर लिया, तो वो स्कोर उन्होंने रोक के रखा। लेकिन जो चेस, मतलब ये 2 दफ़ा हो गया, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हो गया चेस में, इतनी कामनेस और इतनी प्रोफेशनल चेस कि आप वो अफगानिस्तान से पहले आप एसोसिएट नहीं करते थे। पहले भी मैं पाकिस्तान वाले मैच में भी ऐसे लग रहा था कि शायद अभी आउट हो जाए, अभी पैनिक होगा, अभी पैनिक क्लोज आ रहा था ना। जब क्रॉस द लाइन करनी होता था प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन वो कामनेस ज़रूर इनकी बैटिंग में, आज भी जब चेस किया है तो कभी किसी स्टेज पे ऐसा नहीं लगा कि कोई प्रेशर इनको पे चढ़ रहा है, या वो प्रेशर ऑफ द चेस है या विक्ट्री का प्रेशर है, वो नहीं नज़र आया, पूरी इनिंग में नहीं नज़र आया। एक स्टेज पे तो ऐसे था जब इन कैप्टन इनका शाहिदी और रहमत शाह बैटिंग कर रहे थे, ये बॉल ही बीट नहीं हो रहे थे। तो मैं देख रहा था कि हर बॉल बल्ले पे लग रहा है, तो ये कैसे आउट होंगे। वो तो रजीता का 1-2 बॉल हुआ तो थोड़ा बीट, उसके अलावा पूरी इनिंग्स में बहुत कंट्रोल के साथ खेले। मैं ऐसे नाम नहीं लेता होता, मैं कभी कोचेस का नाम नहीं लेता, लेकिन इनकी बैटिंग में वो ज़रूर थोड़ी सी झलक नजर आई, ट्रॉट की झलक जरूर आ रही है। जो कामनेस ट्रॉट की बैटिंग में होती है, चाहे वो आराम से वो खेलता इसी तरह था, आराम से टाइम लेके, लेकिन वो उसको रन्स बनाने का तरीका आता था। वो कामनेस किसी ना किसी तरीके से थोड़ी सी उसने अफगानिस्तान के फ्लेयर में ऐड की है। और आज जिस तरह वो खेले हैं, जितनी आसानी से वो मैच जीते हैं, तो मेरे ख्याल से ये वो लम्हा है जहाँ अफगानिस्तान जो है मिडिल, मतलब लोअर मिडिल रैंक टीम, टॉप 10 में से अब वो मिड टेबल टीम बन गई। बिल्कुल, एग्जैक्टली, एंड आई थिंक वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस आर इन ऑर्डर फॉर टीम अफगानिस्तान एज वेल। मैं जरा राशिद भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, सिर्फ फॉर्मर कोच रहे हैं आप अफगानिस्तान के। मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि हम बड़ा बैंग कर रहे थे सुबह भी, जब हमने कॉन्वर्सेशन की तो हमने कहा कि यार ऊपर से रहमानुल्लाह, गुरबाज, इब्राहिम जदरान जब स्कोर करेंगे तो एक अच्छी फाउंडेशन सेट कर सकते हैं, चेस कर सकेंगे। लेकिन आज जब हम फायरवर्क्स देखते हैं तो वो रहमत शाह की शक्ल में नजर आते हैं, जिस पे हमने बात की थी कि शायद बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। सो हाउ डू यू सी रहमत इनिंग्स टुडे? नहीं, रहमत ने पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म किया, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में शायद वैसे नहीं किया जैसा हम लोग या अफगानिस्तान टीम चाह रही थी। और शुरू में जब श्रीलंका ने बैटिंग की है ना, लग रहा था कि यार पिच में कुछ है, क्योंकि ये वो प्लेयर नहीं थे, मैंडिस हो जाए कोई या जो भी हो जाए, निशांका हो जाए, ये 78 के 75 की स्ट्राइक रेट से तो नहीं खेलते ना। और काफ़ी टाइम लिया है इन्होंने, वो खेलते चले गए कि अब मारेंगे अब मारेंगे अब मारेंगे। 7 नंबर पे जैसे हफीज़ ने कहा, आपके मैथ्यूज़ आ गए, वो भी डीप चले गए आखिरी ओवर तक, लास्ट ओवर में ऑल आउट हुए हैं। और रन कितने बने, तो हमें कल का मैच याद आ गया कि इंडिया का मैच शायद ऐसी पिच हो, फास्ट बॉलर बॉल करेंगे, आउट कर देंगे या कोई ना कुछ होगा। लेकिन जब उन्होंने पहली गेंद पे आउट हुआ तो लगा कि अब दायरे में अगर आउट कर देंगे 2-3 तो मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल।
लेकिन जिस तरह से वो फुल फेस ऑफ द बैट पाकिस्तान के खिलाफ खेले, प्लेइंग 11 पहले हम इतनी तवज्जो नहीं देते थे, अब सारी टीम इनकी प्लेइंग 11 को देखेंगे यार कैसे खेल रहे हैं। 3 स्पिनर हैं, टर्निंग पिच है नहीं, 3 पेसर हैं, वाली पिच भी नहीं है। अजमत ने चेंज लेके आया इस टीम में, जैसे पांड्या की हम बात करते हैं, उसकी ब्रिज हार्दिक पांड्या की, उसकी तरह से ये रोल कर रहे हैं। ये ऊपर भी जा सकते हैं, नबी भी है, 2 बैटर हो गए, 3 स्पिनर 3 पेसर 5 बैटर्स, उसमें 1 विकेट कीपर भी आ रहा है। ये बहुत अच्छा बन सकता है, लेकिन क्वालिटी प्लेयर्स हों। बिल्कुल। और ऑर्डनरी परफॉर्मेंस भी अच्छी लगने लगेगी। हम इसमें मैं और हफीज़ स्पेशली नबी की परफॉर्मेंस पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन टीम परफॉर्मेंस में वो अच्छी परफॉर्मेंस लग रही है। तो इससे क्या जाहिर हुआ, 2 विनिंग थे अगेंस्ट पाकिस्तान और अगेंस्ट श्रीलंका। ये टीम गेम है, True. ये राशिद खान का गेम नहीं है। True. लेकिन राशिद खान की पार्टनरशिप दूसरे एंड पे हुई है, उसने कितने विकेट लिए वो इम्पोर्टेंट है। Exactly. राशिद खान ने नहीं लिए, चलो ना 50 रन दे दिए उसने, लेकिन दूसरे एंड पे जो बॉलिंग साथ में कर रहा था उसने की। तो अफगानिस्तान ने डिस्प्ले किया है कि क्रिकेट टीम गेम है, कि क्रिकेट जो है वो एक टीम गेम है। इसीलिए अब मैं ज़रा इसके ऊपर मजीद भी ज़रूर रोशनी डलवाना चाहता हूँ। हफीज़ भाई की जानिब बढ़ूंगा। यहाँ पे स्किपर की इनिंग्स की बात करते हैं, अगर उन्होंने खुद भी कहा कि यार आई वांटेड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट और मैंने पूरी कोशिश की है, व्हाट एवर हार्ड वर्क वी कैन पुट इन। जो अभी राशिद भाई ने बात की सिंगल्स की, तो आप ये देखें कि उन्होंने 2 चौके लगाए हैं और 1 छक्का मारा है। 44 रन उन्होंने भाग के ही बनाए। सो ही अंडरस्टूड दैट व्हाट रोल ही हैड टू प्ले ओवर देयर व्हाइल बीइंग ऑन द क्रीज। किसी जल्दी में नहीं नजर आया हशमतुल्लाह शाहिद। ये देखें, क्रिकेट की सबसे ज़्यादा खूबसूरत या सबसे ज़्यादा अच्छी लगने वाली चीज़ ये है कि आपको सिंगल निकालना आता हो एज ए बैट्समैन। या वो सिखा रहे इस तरीके से है, समझा रहे इस तरीके से हैं, या अजय जडेजा की बात की है जो सिर्फ इस टूर के ऊपर वर्ल्ड कप के लिए कंसल्टेंट के तौर पर आए हैं। कुछ इन्होंने लर्न किया है, क्योंकि जो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एज ए बैट्समैन। हिट द बाउंड्री इज़ वेरी इजी फॉर एवरीवन, कोई भी चौका छक्का लगा लेगा, लेकिन जो रोटेशन करना जानता है, और आज हशमत और उमर जई और उससे पहले रहमत जो इन्होंने स्कोर किया उसमें बाउंड्रीज कम है और रोटेशन ज्यादा है। एक टाइम था 10 या 12 ओवर में चौका नहीं लगा था, लेकिन स्कोर बोर्ड नहीं रुका, स्कोर बोर्ड पे 3-4 4-4 4-4 होते गए। तो मकसद ये था कि उन्होंने अपने एक प्लान तरीके से, कंट्रोल तरीके से बैटिंग की। आप हशमत को देख लें या ऊपर से रहमत को देख लें या इब्राहिम को देख लें, गुरबाज के आउट होने के बाद भी, पहले ओवर में या दूसरे ओवर में आउट हो गया गुरबाज, उनके आउट होने के बाद भी उन्होंने पूरा कंट्रोल्ड वे में जो है वो चेज किया है। इसका मतलब है कि दे आर ऑन अ राइट ट्रैक, जिसकी डेवलपमेंट की बात बीके ने की कि पहले शायद जब ये आखिरी सर्कल में जाते थे ना तो ये इनको जीतने का गुर नहीं आ रहा था। अब वो जो कामनेस कहीं से भी आई है, वो जडेजा लेके आए हैं, जोनाथन ट्रॉट लेके आए हैं, या इन्होंने खुद रियलाइज कर लिया कैसे कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये जो विनिंग मोमेंट्स हैं ये उसको जीत रहे हैं। लेकिन जो की रोल प्ले किया, मैं समझता हूँ, मेरी समझ में जहाँ से मैच बदला है वो मुजीब के वो जो स्पेल था जहाँ पे उन्होंने मेंडस और उसको सदीरा को आउट किया, क्योंकि वो दोनों इस जगह पे पहुंच गए थे जहाँ पे एक्सेलरेशन आनी थी। उन दोनों को आउट करके आउट ऑफ फॉर्म असलांका, आउट ऑफ फॉर्म धनंजाया बीच में आए, और उन दोनों ने वही किया जो पूरा टूर्नामेंट में कर रहे हैं, एक केयरलेस किस्म की शॉट्स खेली दोनों ने, और अपनी टीम के वो जो हमें नज़र आ रहा था कि शायद ये 300 तक जाएंगे, लेकिन वो उस 2 आउट करने और उनके बैड शॉट्स ने बिल्कुल ही इनको ये भी दे वर लकी टू गेट 240 एट द एंड, क्योंकि थिकशाना ने स्कोर ऐड कर दिया 30 समथिंग, अदरवाइज मुझे लग रहा था कि ये 200 भी नहीं करेंगे। तो देयर इज अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम अफगानिस्तान। कप्तानी को लेके हर बंदे ने रोल प्ले किया। आप फजले हक फारूकी की बात कर लें तो उन्होंने नए बॉल से आउट नहीं किए हुए, बाद में आगे किया। ट्रू, ऐसे ही है। तो ये शो करता है कि उनकी डे बाय डे उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो हो रही है, वो रिलाई नहीं कर रहे सिर्फ वन वे ट्रैफिक के ऊपर, उनको कंट्रोल्ड किस्म की परफॉर्मेंस करना आ गई है। एग्जैक्टली। मैं जरा बाजिब भाई से भी बात करना चाहता हूँ, एक तो स्किपर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और दूसरा दूसरे एंड के ऊपर, क्योंकि मैं आपको एक बात याद कराऊंगा, आपने बात की थी बाबर और इमाम के हवाले से एक गेम में, जिसमें आपने कहा कि यार इमाम चूंकि अब ग्रेजुअली सेटल हो गया था, या बाबर शायद आपने किसी एक के हवाले से, तो दूसरे के ऊपर उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि आप ही चार्ज करें जो वेल सेटल थे। इसमें अजमतुल्लाह उमर जई का भी बड़ा किरदार है, वो 115 के स्ट्राइक रेट से खेले। दूसरी जानिब अगर हम हशमत की बात करते हैं, उन्होंने एक सेटल्ड इनिंग्स खेली जिसकी वजह से चेस कर पाए। अब साथ राशिद भाई को भी कनेक्ट करता हूँ, जहाँ 31 से 40 ओवर में और 40 से लेके जितने ओवर्स तक इन्होंने चेस मुकम्मल किया 45 से 46 ओवर्स में, इन्होंने कोई विकेट नहीं लूज की। दे मेड श्योर दैट दे कुड स्टिक टू दैट प्लान।
देखिए जब रहमत शाह आउट हुआ है या जब शाहिदी आया है तो शाहिदी ने आके शुरू में चांस लिए हैं, उसने निकल के मारी, एक टॉपेज में छक्का भी हुआ, इधर मारी, कोशिश की उसने। फिर जब रहमत आउट हुआ है तो फिर अजमत जब आता है तो अजमत का तो रोल ही है, तो वो शाहिदी, अब शाहिदी का रोल बन गया है कि वो गेम को लेके चले, डीप लेके चले। अजमत का काम ये बन गया कि अब जहाँ उसको मौका मिलेगा वो चांस लेगा। लहरपुर की हमने डिस्कशन की, हमने सरगोदा की डिस्कशन की, सरगोदा में क्या फ्रूटर, फ्रूटर। तो जब सर्दियों में ना अच्छी धूप नहीं, सर्दी की धूप हो, काला नमक हो और ये फ्रूटर या संतरे या इस तरह माल्टे हो, क्या बात, वो सुकून से बैठ के खाए जाते हैं, उसमें जल्दी नहीं करते। आज इनकी चेस बिल्कुल ऐसी थी, बिल्कुल सुकून से बैठ के संतरे खाए, संतरे उन्होंने काला नमक लगाया और आराम से खेलते गए। मैं ब्रेक में जाने से पहले ना सिर्फ राशि भाई से एक और बात यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहे, वो ये कि सर ऐसा नहीं है कि इस वर्ल्ड स्टेज के ऊपर जो भी टीम्स खेल रही है उनके पास टैलेंट नहीं है या वो स्किल्ड नहीं है, किसी वजह से वो वहाँ पे खेल रहे हैं। लेकिन जो हम इंडिया के गेम में देखते हैं, जो आज हमें अफगानिस्तान में भी उसकी झलक नजर आती है, इट्स मोर ऑफ योर मेंटल अंडरस्टैंडिंग कि आपका क्या किरदार है उस टीम में, और हमने उन्हीं टीम्स को अच्छा खेलते हुए देखा। आ गई बात आप जी, डायरेक्शन चाहिए थी इनको, खेलना आता है और टीम स्पिरिट की मैं बात कर चुका हूँ, इससे अच्छी नहीं है जी, नज़र आता है खेलते हुए। हफीज़ खेलोगे इनके खिलाफ, मैच के बाद जो सेलिब्रेशन होती है वो अलग ही है। ये जो कर दिया ना उन्होंने 3 मैचेस, अब सोचने की बात है कि अफगानिस्तान में कितने लोग देख रहे होंगे, क्या बात है, और नेक्स्ट 5 ईयर्स में या नेक्स्ट 8 ईयर्स के अंदर क्या टैलेंट आएगा, क्योंकि पूरा पाकिस्तान भी देख रहा है, पाकिस्तान के मैच तो देखते हैं ना। बिल्कुल, इस अफगानिस्तान के टीम को पूरा अफगानिस्तान देख रहा है, फॉलो करता है। हमारे चाइना में मैच हुआ था, सेमीफाइनल था अफगान से बांग्लादेश से, मेडल का फाइनल था एशियन गेम्स का। उस दिन अफगानिस्तान में कोई क्राइम नहीं हुआ था। क्या बात है, समझ रहे हैं बात? तो इतने फॉलो करते हैं क्रिकेट को कि वहाँ पे होता है जैसे कि हर कोई क्रिकेट के साथ, वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मीर वाइज के मैं इसीलिए नाम ले रहा हूँ, वो ट्राई कर रहा है, खोस्त में, मज़ार शरीफ में, कंधार में, ऊपर चले जाएँ काबुल से आगे, ट्राई कर रहे हैं कि फंडिंग जो आ रही है वो पैसा लगाया जाए। वेदर इजाज़त नहीं देता, कहीं कहीं बर्फ़बारी हो जाती है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि लोकल प्लेयर आए यहाँ से। और आने वाला वक्त, ये मैच देखें 92 का वर्ल्ड कप याद है पाकिस्तान को, जावेद भाई का छक्का 85 का याद है, वहाँ से एक ट्रेंड शुरू हुआ और उसके बाद पाकिस्तान ने क्या प्लेयर प्रोड्यूस किए। एक अच्छी विन से या एक अच्छे कप से जनरेशन इंस्पायर होती है। एग्जैक्टली। और ये जो प्लेयर्स करके जा रहे हैं अफगानिस्तान के लिए, ये आने वाला वक्त आपको बताएगा, आने वाला वक्त बिल्कुल बताएगा। या इसको ऐसे भी मिसाल इसकी रखी जा सकती है आपकी जगह के साथ सर, वो ये है कि बहुत दफ़ा हमने देखा है दूर दराज इलाकों से बच्चे पढ़ने आते हैं अपने खाला फुप्पो के घर शहरों में, और शहरों में आके वो बच्चे फिर जब ज़्यादा नंबर लेते हैं तो घर के बच्चों को डांट जरूर पड़ती है। मतलब एक वक्त में कि जब जाने पढ़ना चाहता हूँ, प्लीज डोंट गो एनीवेयर, विल बी Right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying tuned to PTV Sports. Certainly, we are talking about Afghanistan and how, overwhelming it is for all of us to see while they were actually playing like a team and how they have actually made sure that they're going to win against, 3 different champions on 3 different occasions. May it be 92, may it be 96, or may it be 2019. But अब जो यहाँ पर मेरा ख्याल है जो बात करने वाली अपने एक्सपर्ट्स के साथ वो ये है कि what did Afghanistan do differently to get to a point where they are middle of the points table, where they're certainly striving to get into that knockout stage as well, and they might, the way they are playing. मैं सबसे पहले हफीज भाई आपकी जानिब मानना चाहता हूँ। अब हम चाहते ही हैं कि हम जरा एक मवाजना करें, एक हम देखें कि अगर इंडिया के अगेंस्ट इनके जो की प्लेयर्स हैं जिन्होंने आज परफॉर्म किया है और आज श्रीलंका के अगेंस्ट क्या डिफरेंट नजर आता है इनकी बैटिंग में, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट अनफॉर्चुनेटली दे लॉस्ट।
आज श्रीलंका के अगेंस्ट दे वन। तो सबसे पहले ज़रा अजमतुल्लाह उमरज़ई के हवाले से बात करना चाहता हूँ आपके साथ। पहले हम आपको इंडिया की बैटिंग दिखाएंगे, फिर इंडिया के अगेंस्ट उनकी बैटिंग, और फिर उसके बाद श्रीलंका के अगेंस्ट उनकी बैटिंग दिखाना चाहता हूँ, सो दैट वी कैन गार्नर एंड गेज फॉर आवर व्यूअर्स एज वेल। आई नहीं, सबसे पहले ज़रा इंडिया के अगेंस्ट देखते हैं। आई थिंक इट वाज ऑड 50 और 60 रन्स दैट अजमत contributed. क्लैरिटी ऑफ रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज ए बैटिंग यूनिट। अगर आपके रोल्स की क्लैरिटी ना हो तो समटाइम आप एग्जीक्यूट अच्छा नहीं करते या इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं लेके आते। इवन इस मैच में हशमत ने भी 80 समथिंग किया था, लेकिन उसके अंदर उनकी जो इंटेंट थी वो थोड़ी कमज़ोर लगी। हमें लगा कि वो शायद जिस रेशोज या जिस स्ट्राइक रेट के साथ उनको खेलना चाहिए वो उसको अचीव नहीं कर पाए, लेकिन वो स्क्रैची इनिंग्स ने उनको पॉलिश किया। ठीक है। और अगली 2 इनिंग्स अगेंस्ट पाकिस्तान भी इनकी कंट्रीब्यूशन बड़ी शानदार थी, और आज के मैच में भी वह मैच विनिंग नॉक है। exactly. मुझे लगता है कि यहाँ पे इनके जो 5 पहले इनकी जीतने का मंत्रा था स्पिन के ऊपर जीतना। बिल्कुल। इनकी जो डेवलपमेंट अच्छी नजर आई है, जिसपे इनको भी फख्र है और इनके फैंस को भी फख्र होना चाहिए, और हमें भी एज ए क्रिकेट फैन हमें मज़ा आया देख के कि यार जो एक कमी थी उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई। बिल्कुल। प्लेयर्स को रोटेशन ऑफ स्ट्राइक सिखाया गया, उस पर काम हुआ, और विनिंग मंत्रा जो है वो सिर्फ बॉलिंग के ऊपर रिलाई करके नहीं, बैटिंग पे भी उन्होंने कॉन्फिडेंस शो किया। जैसे कि ये दोनों मैच देखें कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक बेहतरीन स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है, गो के इस वक्त इतनी फॉर्म में नहीं है, लेकिन उनको आप ये नहीं कह सकते कि बड़े आराम से हम उनके खिलाफ खेल सकते। बिल्कुल। इन्होंने वो मैच बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव विन किया, और आज के मैच में भी कहीं पे भी वो घबराए नहीं, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि ये काम नजर नहीं आ रहे, बड़े कंट्रोल तरीके से। और इवन एक जगह पे एक चार्ट दिखाया गया कि इनके कोच ने एक पूरा प्लान लिखा हुआ है कि 10 ओवर में 50, 20 में 100। जहाँ अजमतुल्लाह उमरज़ई की बात की है वहाँ आपके साथ मैं बात करना चाहता हूँ हशमत के हवाले से। जब हम एज ए स्किपर, उन्होंने आज खुद भी कहा कि यार जो इनिंग्स मैं लीड करना चाहता था, फाइनली मैं देख रहा हूँ कि whatever characters we got, you know, we are going to display that. तो अगर हम इंडिया के अगेंस्ट भी देखते हैं और फिर हम आज भी देखते हैं, I think these are 2 things which I would want you to kind of differentiate in between as well. So please. हमें कह रहे हैं और अब हम मान रहे हैं कि हम जो तैयारी कर रहे थे वर्ल्ड कप से पहले, आज पोस्ट मैच में भी इसने बोला कि जो हम तैयारी कर रहे थे वर्ल्ड कप से पहले वो ये क्रिकेट की थी। हम पहले मान नहीं रहे थे क्योंकि हमें नज़र नहीं आ रही थी। अब हालांकि बाकी बैटर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन इसने जो पाकिस्तान के खिलाफ खेला वो हम तवक्को नहीं कर रहे थे कि ये जिस स्ट्राइक रेट से बाकी खेल रहे थे उसको कैरी ऑन करके एंड तक लेके जाएंगे। आज शायद क्योंकि वो इनिंग्स देखी हुई थी, आज शायद हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि ये वो कर पाएंगे। तो वो जो एबिलिटी राशिद भाई अभी बता रहे थे कि हमें इसने 200 भी किया हुआ टेस्ट मैच पे, तो एबिलिटी तो है, बट वो बिग स्टेज पे और इस सिचुएशन में एज कैप्टन मिडिल ऑर्डर में आके उस एबिलिटी को डिस्प्ले करना, वो ही सारे गेम था। आई थिंक वो जो कॉन्फिडेंस उसको रन से मिले हैं, और जो मैच अगले मैच में जो पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्फिडेंस मिला है मैच जिताने पे, उसकी वजह से आज ज़्यादा फ्लुएंट लगे हैं। विद इन अ गेम, विद इन अ पार्टनरशिप भी रोल चेंज हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर एक बैटर शुरू से खेल रहा है और काफ़ी देर गुजार चुका है क्रीज पे, उसका फिर काम बन जाता है कि वो पूरा एंड तक लेके चले। जो नया बैटर आ रहा है वो कोशिश करे कि जो पीछे मोमेंटम तो नहीं कहूँगा, जो स्ट्राइक रेट या रन्स चल रहे हैं वो चला के रखे। लखनऊ की मुझे फिर वो याद आई कि उसमें मैंने एक पढ़ा था, वो जो चौक पे जो मशहूर चौक है उसमें एक दुकान है, उसका नाम है मक्खन मलाई। आज ऐसा लगा कि मक्खन मलाई तो पुणे में चल रहा था। मक्खन मलाई जो है वो पुणे में चल रहा था। पहले फ्रूटर भी चले हैं काले नमक के साथ, और उसके बाद मक्खन मलाई। मैं मेरा ख्याल है इस मौके पे एक जरा शॉर्ट एंड स्वीट ब्रेक की जाने बढ़ना चाहता हूँ। जब वापस आएंगे तो राशिद भाई की जाने बढ़ेंगे फॉर द फॉल ऑफ विकेट्स ऑफ श्रीलंका। व्हाट वेंट रॉन्ग देयर इज समथिंग वी नीड टू आइडेंटिफाई। गेम ऑन है। Right, ladies and gentlemen, welcome back. So moving on to Rashid Latif साहब over here. So sir, सबसे पहले ज़रा श्रीलंका के हवाले से बात करते हैं। श्रीलंका 1996 जैसे हमने बात की, चैम्पियंस, नॉट जस्ट दैट, दासुन शनाका, फिर इंजरीज। मुझे दासुन शनाका पर्सनली शायद मेरे वन ऑफ द फेवरेट स्किपर्स ज़रूर है। अनफॉर्चुनेटली जहाँ हम सुबह में बात कर रहे थे कि अब उनके कॉम्बिनेशंस रिदम में आते हुए नजर आते हैं, वो डिस्प्ले नहीं हो सका आज फॉर अ टीम
like against Afghanistan? नहीं, हाइप बन गई थी इनकी। हम लोग भी देख रहे थे कि आज अगर मैच जीतते हैं तो फिर आगे किससे खेलेंगे जी। और पॉइंट्स लेके ये टीम कैंडिडेट थी सेमीफाइनल के लिए। लेकिन आज की जो परफॉर्मेंस है, ये ऐसा लगा कि अफगानिस्तान के सामने ये खेलने ही नहीं आए। जिस तरह से हमने बॉलिंग की और उन्हें 280 प्लस उन्होंने चेज किया, नॉर्मल, बिल्कुल कोई मारा नहीं, आराम से करके गया। तो आज भी गेम बॉलिंग की तो उनको रिस्ट्रिक्ट रखा, उनका बल्ला ही नहीं उठने दिया कहीं पे भी। तो नहीं समझ में आया कि या तो बॉलिंग बहुत अच्छी थी या बहुत ख़राब खेले। ठीक है, ये हमें भी यही आइडेंटिफाई नहीं हो पाया एग्जैक्टली कि राशिद खान हो या मुजीब हो या नबी हो या फजले हो या अजमत हो, नवीन हो, 6 के 6 ने बड़ा अच्छी बॉलिंग की है। हम लोग डिपेंड करते थे, अफगानिस्तान वाले, हम लोग बोल रहा हूँ, अफगानिस्तान डिपेंड करता था राशिद खान पे ना। फिर मुजीब आ गया, नबी तो साथ में थे, नबी सबसे पुराने हैं। उसके बाद विनिंग प्लेयर कौन आ गया? गुरबाज हो गया। गुरबाज ने डेवलप किसको किया? देखिए ना, इब्राहिम को किया है। इब्राहिम ने किसको डेवलप किया? दूसरे रहमत को किया। रहमत ने किसको किया? देखिए ना, हशमत को किया। हशमत ने किसको किया? तो एक चेन बनती चली गई। और ये एक क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा किसी को सीखने के लिए, मतलब कि प्रोजेक्ट मिल सकता है कि यार अफगानिस्तान पे रिसर्च करो कि उनकी जो अभी से नहीं, जब से वो क्रिकेट में आए, जब लेवल 5 में आए थे, एक ही साल में ये ऊपर चले गए थे। एक ही साल में सबको हराते हराते ऊपर चले गए थे। वहाँ से लेके 2023 के वर्ल्ड कप तक इनकी प्रोग्रेस देखें कि किस तरह से एक टीम ने, जहाँ पे क्रिकेट ही नहीं होती थी, जिनके ग्राउंड ही नहीं है, वहाँ से लेके वर्ल्ड कप की 3 चैंपियंस टीम को आज हराया है। एग्जैक्टली। तो इस पे मेरे ख्याल से आईसीसी को खुद रिसर्च करना। बिल्कुल, और दिल बड़ा, बहुत बड़ा हुआ, मतलब देख के बड़ी खुशी हुई। डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं राशिद भाई, प्रोजेक्ट बनी हुई है। मैं अपना किस्सा छोटा सा मैं बता, जरूर। मैं काबुल पहुंचा, जा रहा था तो अमेरिकन बेस थी, एयर बेस थी, तो वहाँ हेलीकॉप्टर गिरा हुआ था सामने। बोल रहा है 1 घंटे पहले गिरा है। तो वो खेल रहे थे उसके ऊपर। माइंडसेट ये है यानी कि। तो बाकी नहीं बताऊंगा, बहुत बातें हुई हैं वहाँ पे, लेकिन ये कि ये प्रोग्राम क्रिकेट का, पीटीवी का जाती नहीं है मेरा। लेकिन सर, ये जो आपने बात की है, इससे काफी रेजिलियंस नजर आती है, डेडिकेशन नजर आती है, गेम की तरफ जो पैशन है उनका वो नजर आता है, जहां से वो उभर के आए हैं, जिन कंडीशन से वो आए। कभी कभार इनका एग्रेशन नजर आता है टीवी पे, हमारे खिलाफ भी नजर आता है, दूसरों के खिलाफ भी। डिजर्व करते हैं, ये वाकई डिजर्व करते हैं सर, इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं। और इसी के साथ जो एक सुबह में हमने गुफ्तगू की थी कि इनके लिए एक ट्रिकी डिसीजन होगा कि ये नूर को खिलाएंगे या फजल फारूकी को खिलाएंगे। आई थिंक हम सब ने कहा कि यार शायद हो सकता है, क्योंकि नूर ने वो इम्पैक्ट आके दिया तो नूर ही शायद खेले। उन्होंने फजल फारूकी को खिलाया, प्लेयर ऑफ द मैच बने सर वो आज। मेरा ख्याल है उनकी विकेट्स के ऊपर भी तज़किरा जरूर करना चाहिए हमें यहाँ पर। देखें, काफ़ी अरसे से हम क्रिकेट में हैं, हम तीनों का क्या था कि यार गलत फैसला है जी, लेकिन बाद में आके जो दूसरे और तीसरे स्पेल में बॉलिंग की, दैट वाज स्पेशल। कि पहले इनके ये फेलियर हो रहा था कि नए बॉल की इनकी स्विंग के बाद जब ये मिड और एंड में आ रहे थे तो राइट एग्जीक्यूशन नहीं हो रही थी। तो आज की कामयाबी में जो बड़ा हाथ है, वो नया बॉल तो अच्छा करते ही हैं, जिसको अगर हम साइड पे निकाल दें तो 3 विकेट और जो अच्छी बॉलिंग है वो पुराने बॉल के साथ की गई। तो ये इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का कि मैं समझता हूँ तारीफ करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ जाऊँ इसी के साथ जी, मैं श्रीलंका के फेलियर की ना कुछ रीजंस मैं सिर्फ बता श्योर। करुणारत्ने एशिया कप पूरा खेले, टेस्ट के शानदार प्लेयर हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट के लिए वो रेडी नहीं थे, उनको लाया गया। आप उनके लिमिटेड ऑप्शंस या बैड सिलेक्शन, कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से करुणारत्ने पहले एशिया कप खेल जाते हैं, वहां पे बुरी तरह फेल होने के बाद वो वर्ल्ड कप में भी ले आते हैं, बिल्कुल यहाँ पे आकर भी फेल होते हैं, तो उनको फिर दोबारा परेरा जो है वो उनको रिप्लेस करते हैं। बाद में उनकी कंकशन रूल या उनको भी ड्रॉप कर दिया जाता है, तो दोबारा फिर, यानी फेलियर बाहर होता है, फेलियर आता है, दोबारा फिर उसका फेलियर होता है, तो फिर एक फेलियर आता है। तो आप सोचें कि उनके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है या उन्होंने पिक नहीं किया जिसको एक्सेस बैगेज के बगैर खिलाया जा सके, जो फ्रेश माइंड के साथ खेले। इसी तरीके से धनंजया नंबर 6 पे खेल के फेल होते जा रहे हैं। और बीके ने बात की थी कि नॉर्मली पूरी दुनिया में नंबर 6 का बैट्समैन जो है वो फिनिशर होता है, और ये एज ए फिनिशर अपना रोल 76 या 78 के स्ट्राइक रेट पे इस मॉडर्न डे क्रिकेट में खेल के वो सोच रहे हैं कि वो पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इनकी कमी है। लगातार उनकी बारियां भी अच्छी आ रही हैं, लेकिन किसी भी जगह पे नहीं लगा कि वो इस गेम या वनडे क्रिकेट के साथ
रहना चाहते हैं या इसके लिए रेडी The हैं। kind of performance. असलंका जो हैं वो इनके बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन एक फेलियर चल रहा है True. और इस फेलियर के साथ उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो गलत चल रही है। उनकी आउट ऑफ फॉर्म समझ लें। आज मैथ्यूज आते हैं, मुझे जो थोड़ा सा मुझे इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि देखें, या तो इस लेवल के प्लेयर को आप बुलाएं ना, अगर बुलाया है तो वो एज ए फील्डर नहीं आया यहाँ पे कि उसने आगे 50 ओवर की फील्डिंग करके देनी है, आप उसको नंबर 5 पे भेजें, असलंका की जगह उसको भेजें जो उसका नंबर बनता है, ताकि वो नंबर 5 पे आके प्रेशर एब्जॉर्ब करके अगर वो अच्छा होगा तो परफॉर्म करेगा। ये 100 टेस्ट खेलने वाले बंदे के साथ लाइक श्रीलंका की कप्तानी करने के बाद उसको नंबर 7 पे उस वक्त भेजा गया जब टेल उसके साथ खड़ी हुई थी। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं किसी ऐसे प्लेयर से? तो ये बैड यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट भी है कि फेलियर्स को ज्यादा से ज्यादा मौका मिल रहा है, और जो बंदा आपने बुलाया जो मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर है उसको आप नंबर 7 पे भेज रहे हैं। लाइक बांग्लादेश महमूदुल्लाह के साथ ट्रीटमेंट की जा रही है। तो ये सीखने की भी जरूरत है कि आप या तो अपने मेन प्लेयरों को अगर खिला रहे हैं तो उनको यूटिलाइज करें या उनको टीम के साथ ना लेके आएं। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे सिर्फ एक और चीज़, आपने बड़ा राइटफुली इसको मेरा ख्याल है ऑब्जर्व भी किया और फिर आपने डिसेमिनेट की ये इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे शायद श्रीलंका से एक और गलती ज़रूर हुई जो हमने उनके इंजरीज में देखी। पहले LPL की बात करते हैं, फिर एशिया कप की बात करते हैं, तो वर्कलोड मैनेजमेंट ने भी काफ़ी इनको कॉस्ट किया। वी हेडिंग आउट टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक, गेम तो ऑन है। Alright, ladies and gentlemen, welcome back. काफ़ी गुफ्तगू कर ली हमने श्रीलंका और अफगानिस्तान के हवाले से। मेरा ख्याल है कि अब तस्करा करना चाहिए कि कल कौन सी दो टीमें जो हैं वो आमने सामने आ रही हैं। तो certainly as a Pakistani, everybody's excited, everybody's praying for the success of our team as well. So tomorrow, ladies and gentlemen, it's going to be, well, it will be in front of your television screens just about in next 2 seconds. Well, it's going to be Pakistan versus Bangladesh. We will be taking you to Kolkata, Eden Gardens, and well, this is a contest that nobody would want to miss. Certainly tomorrow is going to be a big day for Team Pakistan. It's never too late to bounce back, and even unfortunately, if we have had 4 losses on the trot, Pakistan will certainly be trying their best. जाने से पहले जरा राशिद भाई, हफीज भाई और बाजी भाई से पूछना चाहूँगा कल की गेम के लिए पाकिस्तान को क्या तैयारी कर रही है बॉस? यार बड़ी स्टोरी है, बंगाल कलकत्ता, ठीक है ना, मुस्लिम लीग का क़याम जी, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है इन दोनों कंट्रीज़ के लिए, जहाँ से पाकिस्तान की मूवमेंट शुरू हुई बंगाल से, और वहीं पे इन दोनों कंट्री का मैच हो रहा है और बहुत ज़बरदस्त मैच होने जा रहा है, मुझे लग रहा है ये। ठीक है। हालांकि बांग्लादेश बहुत अच्छा नहीं खेल रहा है, लेकिन उनके जज्बात आ रहे हैं, जैसे शकीब उल हसन ने कहा, हमारे साथ सबके जज्बात आ रहे हैं। तो अच्छा मैच देखने जा रहा है। गुड लक पाकिस्तान, हमारी टीम, और इंशाल्लाह जीत के थोड़ा सा 2 पॉइंट हमें चाहिए। जैसा भी खेलो, हम बहुत अच्छा खेले, हमें अच्छा नहीं खेल के दो, हमें 2 पॉइंट चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि गेम ओपन है, अभी वर्ल्ड कप ओपन है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। क्या बात। और पूरी टीम को मतलब गुड लक हमारी तरफ से, PTV स्पोर्ट की जानिब से गुड लक। थैंक यू सो मच। जी हफीज भाई, योर मैसेज फॉर टीम पाकिस्तान फॉर टुमारो। देखें, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस अब तक आई, ये इससे बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और पाकिस्तान तो वैसे दिल में है, उसकी एक दिल की खुशी की भी वजह होती है और तकलीफ़ की भी वजह। अभी तक अनफॉर्चुनेटली समझ लें या बैड प्लानिंग कुछ भी हुआ, वो जिन्होंने बात की कि अच्छा खेल के न दे, 2 पॉइंट लेके दें। मैं ये समझता हूँ कि एज ए टीम पाकिस्तान के अंदर वो कॉम्पोजिशन मौजूद है। कल एक क्लैरिटी के साथ एक प्लान बनाएं और उस क्लैरिटी के साथ उसकी एग्जीक्यूशन करें, जैसे आप समटाइम अपने छोटों से भी सीख लेते हैं या अपनी सराउंडिंग से सीखते हैं। अभी अफगानिस्तान ने ये करके दिखाया कि जैसे जब आप यूनिटी के साथ खेलते हैं और जब आप कुछ प्रूव करना चाहते हैं तो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस सामने आती है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान के पास अभी बहुत कुछ है इस टूर्नामेंट के अंदर अचीव करने के लिए, और मेरी दुआएं हैं कि पाकिस्तान टीम एक बेहतर प्लान के साथ राइट एग्जीक्यूशन करे और कल मैच जीते इंशाल्लाह। बाजी भाई, आपके लिए सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है, अपनी इंस्टिंक्ट पे खेलें या डाटा और इंस्टिंक्ट दोनों को सामने रखें या सिर्फ डाटा को देख कर खेलें?
नहीं डेटा क्या देखेंगे, पिछले मैच जो यहाँ पे हुआ बड़ा मुश्किल सा पिच था, इतना आसान पिच नहीं था बहुत मुश्किल। डेटा, और यहाँ पे मेरे ख्याल ये कितनी देर बाद वनडे मैच हुआ, तो डेटा कहाँ से लेके आएंगे। दूसरी बात ये है कि बूटी है बूटी है जी, वो कल की। 6 साल बाद। दूसरी बात ये है कि दोनों टीमें जीत के नहीं दे रही, ना बांग्लादेश जीत रही है ना पाकिस्तान जीत रही है। अब कैरेट वो कैरेट डेंगल क्या है, कैरेट दोनों के लिए, पाकिस्तान के लिए वो थोड़ी सी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, अभी चांस है सेमीफाइनल का। जी बांग्लादेश कल का मैच हारती है तो चैंपियन ट्रॉफी से जाती है, बिल्कुल। तो उनके लिए मैच, और साकिब ने जो भी बयान है उसके, उनके लिए ये मैच इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आप कह रहे हैं ना पाकिस्तान को सब मिल रहे हैं, ये मैच की सिग्निफिकेंस देखें। एक टीम जो 4 मैच ऑन द ट्रॉट हारी है पहली दफ़ा, उनकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर वो कल का मैच जीते हैं तो उनकी सेमीफाइनल की होप्स अलाइव रहती हैं। True. हारती हैं तो ख़त्म। बांग्लादेश अगर मैच हारती है तो अगली चैंपियंस ट्रॉफी ट्रॉफी ले खत्म। जाते हैं। तो वो जो राशिद भाई ने कहा ना, हिस्टोरिकल वो सारा कुछ है, लेकिन एट द प्रेजेंट कल के मैच में बहुत ज्यादा एट स्टेक है। तो मैच तो मुझे लगता है तो बड़ा अच्छा मैच होने लगा। So unfortunately, both the teams look like as if they are at a brink of a disaster as well. Unfortunately, if they are not able to perform well. But thank you so much, gentlemen, for being with us. Lovely to be in conversation with you. जाने से पहले जैसा कि हम आपसे हमेशा सुबह में सवाल पूछते हैं, ladies and gentlemen, the J. Question of the day. तो आज हमने विनर अनाउंस करना है। जाहिर सी बात है विनर बड़े गौर से सुन रहे होंगे कि क्या मैं जीता हूँ या नहीं जीता हूँ, क्या मैंने सवाल का जवाब दुरुस्त दिया है या नहीं दिया है। सो J. विनर ऑफ द डे फॉर द क्वेश्चन विच वी आस्क्ड टुडे वाज कि आज सबसे ज्यादा विकेट्स कौन हासिल करेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारी ये बिल्कुल 8 के 8 गलत हो गए। बिल्कुल ठीक नहीं हुई। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, जो एक तगड़े इंसान जो आज जीते J. की जाने से परफ्यूम, मैं जरा पहले परफ्यूम भी आपको दिखा दूं, वो है इशफाक भाई फ्रॉम रावलपिंडी। पिंडी बॉयज जो है वो अपने नाम कर गए आज का बड़ी तोहफा बात है J. यार। की ये आज जाने से। जो जीता है ना, ये सही मानों में एग्जैक्टली। तो इशफाक भाई आपके लिए हम सब तालियां बजाना चाहते हैं। कंग्रेचुलेशंस टू यू टू। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, इस प्रेयर के साथ कि आप सब ठीक ठाक रहेंगे, खुश रहेंगे, आपस में जेल्ड इन होकर रहेंगे, एज पाकिस्तानीज रहेंगे और कल इसी तरह अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, मैं खुदाफिज कहना चाहता हूँ। लुक आफ्टर योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज। गेम ऑन है।